Welcome back, dear students. Welcome to this second part of how I taught my grandmother to read. We have completed the first part of it, and now we are going to finish the second part as well. As you know, that this is the story written by Sudha Murthy, and she is telling you how she taught her grandmother to read basics of Kannada language, or how she make her literate. Hmm. Being literate and being educated are two different things. Being literate and being educated, literate, literate and educated are two different things. Okay, but she taught her grandmother to be literate, and through literate, be after being literate, her grandmother tried to gain education by reading literature and everything. So this is the story, and you have up to now known that there is a Kannada writer Triveni, who wrote, who published a series of novel on Kashi Yatra. What was the novel? Novel was Kashi Yatra, which was published in Karam Veera monthly magazine. Okay, it was published in this magazine in a series, and in this Kashi Yatra, there is a old lady who wanted to go on a pilgrim voyage in Varanasi, as it is believed by Hindus that visiting Varanasi and visiting temples and praying there and giving offerings brings bring punya. It is believed by Hindus. It is a widespread belief. So similarly, she wanted to go to Kashi, and by reading this story, her grandmother is inspired. Not reading, she will learn to read now by listening to this story. Listen के बाद to आता है. You be careful about it when there is object. A to is required. Listening to. I am listening song नहीं. Yeah, I am listening your talk नहीं. I am listening to your talk होता है. Okay. So let's begin the second part, and we will quickly finish it, and then we'll do the rest part of the things. I could not understand why my 62-year-old. Acha, one thing, when I'm teaching you here online, the motto of this teaching is to give you a thorough classroom type of teaching. Classroom type of teaching. Okay. Type of teaching where I will go line by line, and I will help you learn how to get meaning on your own, how to get meaning, extract meaning from these lines on your own. This is the motto of my syllabus, my teaching, and I hope if you stay tuned, if you listen to my lessons, you'll definitely be able to do it, and it will definitely help in your examination getting good marks, because you will be able to write on your own, है ना? And you won't be able to cram or rote memorize everything. सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी. इसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे खुद से इन ये जो सेंटेंसेस हैं, इससे मीनिंग निकालनी है. और मेरा जो मेथड है वो क्लासरूम टाइप का रहेगा. वो बहुत ज़्यादा जैसे आजकल एनिमेशन और वो सब चल रहा है, दैट इज़ फाइन, बट here I am going to give you a very in-depth kind of teaching in a comprehensive way. So let's begin. I could not understand. I could not understand. I could not understand. मैं नहीं समझ सकी. पहला sentence, as you have seen in my previous lessons, I divide phrases and clauses into clusters of meaning, into segments of meaning, so that you can take meaning from these clusters and add it and get a wholesome meaning. Okay. So like this, I could not understand. मैं नहीं समझ सकी. क्या नहीं समझ सकी? Why my 62 years old grandmother was telling me. या ये नहीं समझ सकी क्यों मेरी 62 वर्ष बूढ़ी ग्रैंड मदर मुझसे कह रही थी. क्या कह रही थी? 12 year old, मैं जो 12 साल की थी उससे कह रही थी. क्या कह रही थी? द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट. ठीक है, हर क्या क्वेश्चन मार्क लगाते चलेंगे तो आगे जो लाइन में आ रहा है उसका आंसर हमें मिलता चलता है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट. मैं नहीं समझ सकी. मैं क्या नहीं समझ सकी? क्यों मेरी 62 वर्ष की बूढ़ी माँ मुझे कह रही थी. क्या कह रही थी?
अपने जीवन की कहानी मध्यरात्रि में, जो कि 12 वर्ष की बालिका थी. So in this way, we understood the meaning of these lines. That she could not understand that why her mother, her grandmother, who was an old lady of 62-year-old, was telling her life story to me, who was a 12-year-old girl child. Okay, she could not understand. This is what she said in this sentence. But लेकिन मैं जानती थी. I knew I loved her. Here are two sentences, but we are taking it together. मुझे पता था, past indefinite, मुझे पता था कि मैं उनसे प्यार करती थी. आई लव्ड हर, मुझे पता था कि मैं उनसे प्यार करती थी. कैसे करती थी? इमेंसली, अ लॉट, वेरी मच. एंड देयर हैड बीन सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी. सो और यहाँ से अब एक अलग सेंटेंस शुरू होता है. न्यू सेंटेंस स्टार्ट से, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन. इसको यहाँ से बांट सकते हैं, और कोई कारण होना चाहिए. किसी का कारण होना चाहिए. वाई शी वॉज टॉकिंग टू, कि वो मुझसे क्यों बात कर रही थी. ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटते हैं. पहले का मीनिंग निकालते हैं और उसके आगे वाई लगाते हैं, और फिर दूसरे में उसका आंसर मिलता है, और इस तरह से हमको पूरा सेंटेंस मिल जाता है. इन दिस वे वी कैन लर्न दैट देयर हैड बीन सम रीजन, कि कुछ तो कारण रहा होगा जिससे वो मुझसे बात कर रही हैं. ठीक है, ये वो कहती है अपने आप को. ऑब्वियसली कारण है. इट विल कम टू यू इन फ्रंट, राइट, इन नेक्स्ट लाइन. I looked at her face. Simple sentence. Very simple. Easy to get the meaning out of it. I looked at her face. Looked. Past indefinite. मैंने देखा. कहाँ देखा? At her face. ठीक है, मैंने उनके चेहरे पर देखा. किसके चेहरे पर? ग्रैंड मदर के चेहरे पर देखा. अब आगे चलते हैं. इट वॉज अनहैप्पी. फर्स्ट सेंटेंस. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना समझ रहा. यह जो है वो चेहरा जो, इट वॉज अनहैप्पी. वॉट वॉज? फेस. यहाँ पे फेस. इट वॉज अनहैप्पी, वो प्रसन्न नहीं था. एंड जो एडिशन आ गया यहाँ पे, हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स. सिंपल. देर इज एनीथिंग यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ हियर? वेरी सिंपल. एंड ये रहा सब्जेक्ट, हर आईज, एंसिलरी वर्ब, विथ फिल्ड विथ टीयर्स. उनकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनका चेहरा अनहैप्पी था और उनकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी. ये एक सेंटेंस है. लुक एट दिस सेंटेंस लाइक दिस. दिस सेंटेंसेस लाइक दिस. जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस. डू नॉट look around, just at this sentence. She was a good looking lady. A simple sentence. वह एक वह एक गुड लुकिंग, अच्छी दिखने वाली महिला थी. सिंपल. ये यूसेज है. पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस नहीं कहेंगे इसको. वो इस ये एक यूसेज है, एक प्रयोग है. दिस इज जस्ट अ यूज ऑफ वॉज. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी. अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है. हु वॉज यूजुअली स्माइलिंग, जो अक्सर मुस्कुराती रहती थी. अब ये हु जो है शी के लिए है. ओके, डिपेंडेंट क्लॉज. तो वो एक अच्छी, अब इसको हम पूरा एक साथ देखें. शी वॉज अ गुड लेडी हु यूज टू स्माइल ऑलवेज, समथिंग लाइक दिस, है ना. मतलब शी वॉज एन एमिकेबल लेडी. शी वॉज हैप्पी गो लकी पर्सन. शी यूज टू स्माइल. So in this way, we know the meaning of this sentence. She was a good-looking lady who was usually always smiling, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी. अगला sentence. Even today, आज भी, I cannot forget that worried expression on her face. Single sentence है. मैं नहीं भूल सकती. I cannot forget. आई कैनॉट फॉरगेट. मैं नहीं भूल सकती. क्या नहीं भूल सकती? द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. उनके चेहरे पर जो चिंता के भाव थे, वरीड एक्सप्रेशन, उसको नहीं भूल सकती. राइटर इज टेलिंग, सुधा मूर्ति इज टेलिंग that even today, means she up to now she was telling something of the past that belonged to the past, but now she is telling, brought back everything to today. Because how can we know? She said today, and you can see the verb is in present tense. Okay, otherwise it could not, it would have been could not. Here it was. This is called sequence of tense. Okay, in last sentence we got the verb from past tense, but in next sentence when the today is described, we get the word from present sentence, present tense. We cannot, I cannot forget the worried expression. चिंता भरा जो चेहरे पर तनाव का, दुख का, चिंता का जो एक्सप्रेशन था ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर. Who cannot forget? The writer cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward. मैं आगे झुक गई. And held her hand. उनके हाथों को मैंने अपने हाथों में पकड़ा.
अवा डोंट क्राई, अवा रो मत, व्हाट इज द मैटर, ये पहले भी आया है शायद ना, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। दिस सेंटेंस यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज। You come to your school and suddenly teacher picks up a stick and bangs on your palm, then you attend मोक्ष and you ask her your teacher what is the matter, है ना, कि क्यों हुआ, पीट क्यों रहे हो मुझे, then he will give you another, you know, splash, and then you will understand the matter on your own. Get it? It was a joke. If you got it, good. If you did not, well, stay tuned so that you can understand the joke later. Can I help you in any way? क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ किसी तरह से? अब यहाँ एक देखने की बात यह है कि अब तक कहानी पास्ट में चल रही थी, अब तक कहानी पास्ट में चल रही थी, बट अब यहाँ पर वो प्रेजेंट में ही बात कर रही हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, इनको पास्ट में जाना चाहिए था, बिकॉज शी अर्लियर शी वाज नरेटिंग it in past tense, but now suddenly she changed the tense, so be careful about it. It gives you a sense of thing what is happening in the text. You do not feel disconnected if you keep a watch on the tense when it is happening. Earlier it was, see here, was, it was here, filled, past tense, past tense, I knew, loved, everything was past. Now suddenly we find here present tense. What did we find? What do we find? Present tense. तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा, क्या बात है, क्या बात हो गई, क्या मैटर हो गया, ऐसा उन्होंने पूछा। यस आई नीड योर हेल्प, उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हारी किसी तरह सहायता कर सकती हूँ, तो शी सेड यस आई नीड योर हेल्प। ग्रैंड मदर सेड आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। यू नो, तुम्हें पता है, व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी, गाँव शादी में चली गई थी। करमवीरा केम एज यूजुअल, करमवीरा हम बता चुके हैं मैगजीन का नाम है, मंथली या वीकली, वीकली लिटरेरी मैगजीन है। आई, करमवीरा आई थी, केम एज यूजुअल, जैसा कि होता है, केम मतलब डिलीवर्ड, गॉट डिलीवर्ड, केम गॉट डिलीवर्ड। आई ओपन द मैगजीन, अब ये पास्ट में चली गई, क्योंकि अब ये मदर, ग्रैंड मदर अपनी कहानी सुना रही हैं, और ये प्रेजेंट में थोड़ा सा पास्ट की बात हो रही है। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। आई सॉ सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, मैंने देखा, क्या देखा, पिक्चर, कैसा पिक्चर, दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, उस पिक्चर को जिसमें, मैगजीन में एक पिक्चर बनी हुई थी जिसमें काशी यात्रा की बात की गई थी, तो ये उन्होंने देखा। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मैं समझ नहीं सकी, एनीथिंग दैट वाज रिटन, एनीथिंग दैट वाज रिटन, जो कुछ भी लिखा था उसको समझ नहीं सकी। अब सी दिस स्ट्रक्चर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड anything that was written. You should cram this sentence so that you are able to speak like this. Once you cram, you would be able to speak. Many times I rubbed my hands over the pages. कई बार, कई बार, many times, कई बार, I rubbed, मैंने अपने हाथों को रगड़ा, my hands over the pages, पेजों पर। क्यों रगड़ा? Wishing, ये सोचते हुए, अब ये वर्ब है, ठीक है, wishing, जीरन लगाया ना इसमें, wishing they could understand what was written, अपने हाथों को उस पे वो रगड़ रही हैं ताकि वो समझ सकें कि उनमें क्या लिखा हुआ है। अब ये एक जेस्चर है। नाउ इनिशियली इट अपीयर्स ए मीनिंगलेस जेस्चर, मतलब ऐसा लगता है कि बस वो ऐसे ही कर रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो अंधे लोग होते हैं वो भी हाथों से ही चीज़ों को फील करते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर हैं वो एक तरह से ये दिख रहा है कि शी इज एक्टिंग ब्लाइंड, एंड बिकॉज शी इज एक्चुअली ब्लाइंड टुवर्ड्स रिटन लेटर्स, वंस यू डू नॉट अंडरस्टैंड you are actually blind. You know how to read Hindi, English, but if Japanese letters comes in front of you, you are blind because you don't get to know anything. Okay, so she is acting like that, and this is how it is shown through her hand gestures. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन आई न्यू, मैं जानती थी, क्या जानती थी, क्या जानती थी, वर्ब के बाद हमेशा आप क्वेश्चन मार्क लगाइए and you will get the answer in the next line, that is object. I knew, what did she know? It was not possible, ये संभव नहीं था, क्या संभव नहीं था, कि वो हाथ रगड़ने से समझ में आ जाए। if only I was educated enough, अगर मैं, if only, अगर मैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन या ऐसे कह सके, अगर मैं पर्याप्त शिक्षित होती, एजुकेटेड इनफ, तो मैं समझ पाती, इसका कहने का मतलब ये है, इफ ओनली। आई वेटेड ईगरली,
किस चीज का वेट किया? फॉर यू, तुम्हारा वेट किया, तुम्हारा किस चीज के लिए? रिटर्न आने के लिए वेट किया। नाउ शी इज टेलिंग कि आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने बहुत ही मन से तुम्हारे वापस आने का इंतजार किया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, यू वुड कम अर्ली, मुझे लगा तुम जल्दी आओगे। आई फेल्ट, व्हाट डिड आई फील? दैट यू वुड कम अर्ली, कि तुम जल्दी आओगी, एंड रीड फॉर मी, कि तुम वापस आकर मेरे लिए पढ़ोगी, एंड रीड फॉर मी। आई इवन थॉट, मैंने यह भी सोचा, इवन मतलब यह भी, मैंने यह भी सोचा, क्या सोचा? ऑफ गोइंग टू द विलेज, कि मैं गांव में जाऊं, एंड जो ये आ गया एडिशन, आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, कि मैं तुम जहाँ गई हो वहां जाऊं और तुमसे कहूं कि तुम मेरे लिए पढ़ो। आई कुड नॉट आई कुड अनदर ऑप्शन, आई कुड हैव आस्क समबडी इन दिस विलेज, है ना, मैं किसी से इसी गांव में जिसमें वो रह रही हैं उसी में कैसा कह रही हैं कि मैं गांव में से ही किसी से पूछ लेती, लेकिन चूंकि तुम नहीं थी तो मैं गांव से ही पूछ लेती। बट, लेकिन, ये भी एक एडिशन ही है, जैसे एंड होता है ना उसी तरह बट होता है। एंड बट ये सब प्लस के चिन्ह है, इनसे मीनिंग यहाँ एक दूसरी मीनिंग, यहाँ से दूसरी मीनिंग जुड़ रही है। आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, टू का प्रयोग मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड थी, कि मतलब परेशान थी कि मैं ऐसा करूं। आई वॉज टू एम्बेरस्ड मतलब जैसे कि शर्म महसूस करना, या अपने आप पर कि कैसे करेंगे, खराब काम है ये। आई फेल्ट बैड दैट आई शुड डू सो, इसको इंग्लिश में, इन इंग्लिश आई वुड से लाइक दिस, दैट since you were not here, and so I thought of going to another village where you were there, and ask you to read me, but I did not do it. And then I considered another option, that is that I should ask somebody in this village only to read for me. But then I realized that it will be a bad option, because I will feel bad. What will people think of me? I felt very independent. क्या महसूस किया उन्होंने? What did she feel? She felt very dependent, as if she is blind, है ना? As I mentioned, कि उसको लगा कि वो अंधी हैं, and helpless, और एकदम असहाय हैं, निरीह हैं, उनको कोई उनको सहायता की जरूरत है। We are well off मतलब हम अच्छे लोग हैं। Well to do, rich, वी आर वेल ऑफ, हम ठीक ठाक लोग हैं। बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन हमारे सारे धन संपदा का क्या मतलब है अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। अगेन ये आ गया प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो वो कह रही है कि मैंने सोचा कि मैं किसी और से पढ़ लूँ, जाके पूछ लूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, और हम ठीक ठाक लोग हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका क्या मतलब है? वी आर वेल ऑफ, पैसा तो है, बट वॉट यूज, क्या उसका उपयोग है, इज मनी, है ना। अब यहाँ पर हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी एवरीबडी इज नॉट वेल ऑफ। अब यहाँ पे लिख रही हैं कि वी आर वेल ऑफ, बट एक्चुअली दे वर क्वाइट वेल ऑफ, ये ठीक ठाक मतलब घर परिवार से आते थे। ये भारत की ज्यादातर जनता के प्रतिनिधि नहीं है, इनका ये जो परिवार है। दे वर क्वाइट वेल ऑफ, गुड। तो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट नो, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? आगे आ रहा है व्हाट टू आंसर, कि क्या उत्तर दें, क्या उत्तर देना चाहिए। आवा कंटिन्यूड, आवा यानी ग्रैंड मदर बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव डिसाइडेड I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. अब यहाँ पे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। क्या सीखना चाहती हूँ? कन्नड़ा अल्फाबेट, कन्नड़ा अल्फाबेट सीखना चाहती हूँ। कब से सीखना चाहती हूँ? कल से, टुमारो ऑनवर्ड्स। सिंपल, क्लियर, दैट शी वांटेड टू लर्न कन्नड़ा अल्फाबेट। Very simple and good. I will work very hard. Future indefinite. I will work. This is future indefinite. I will work very hard. मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी. I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as deadline. I will keep, मैं रखूंगी सरस्वती पूजा डे, सरस्वती पूजा का जो दिन है, जो दशहरा के समय आता है, उसको डेडलाइन के तौर पर, अंतिम दिन के तौर पर, कि उस दिन तक मैं सीख लूंगी। वो ये कह रही हैं। Okay, so there is nothing to explain here. Saraswati Puja Day. Saraswati Puja is puja, in our schools also.
Saraswati Puja is performed. Devi Saraswati is the goddess of education, Puranic goddess of education. I don't think that there is mention of Devi Saraswati in Vedas because no woman god is mentioned in Vedas. Devi Saraswati is a later development in Hinduism, and but nowadays it is widely celebrated as she is considered as the goddess of education. Whereas there are many social reformers in India who laid emphasis on education and particularly the education of women and those who are not allowed to study in olden times. So we should also know them along with knowing Devi Saraswati as goddess of education. It is we all should believe in whatever we want, but we should also know the different perspectives. Okay, so Devi Saraswati is definitely a revered Saraswati, the revered goddess who is respected and who is considered the goddess of education. And similarly, there were people who strived hard for the education of masses and women. So her grandmother told that decided that the Saraswati Puja would be deadline to learn the Kannada alphabets. That day, उस दिन I would be able to read a novel on my own. That day, which day? Saraswati Puja day. I would should be able to read. Should be मैं पढ़ने के योग्य हो जाऊंगी. A novel on my own. खुद से मैं novel पढ़ पाऊंगी. ऐसा उन्होंने तय किया. I want to be independent. क्यों पढ़ना है नॉवल क्यों पढ़ना है नॉवल वो इसलिए पढ़ना चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं रीडिंग में ओके आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस मैंने देखा क्या देखा डिटर्मिनेशन कहाँ देखा ऑन हर फेस सिंपल दिस इज हाउ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन विद द वर्ब and the object then you get the place I saw the determination where what did she saw उसने निर्णय देखा दृढ़ निर्णय देखा कहाँ देखा उसके हर फेस पे yet I laughed at her फिर भी yet माने फिर भी Still, yet I laughed at her. मैं उस पर हंसी. Ava, at this age of 62, you want to learn alphabet? इस समय 62 साल की उम्र में तुम अल्फाबेट सीखना चाहती हो all your hair is grey. अब देखो all है और hairs नहीं लगाया सिंगुलर नहीं है प्लूरल नहीं है सिंगुलर है all your hair is treated as singular. This is a confusing state. Sometimes you may get confused that all hairs are grey. No, it is all hair is grey. Our your hands are wrinkled. झुर्रियां पड़ गई. Wrinkle means झुर्रियां. झुर्रियां. Or your hands are wrinkled. You wear spectacles and you work so much in the kitchen. तुम चश्मा पहनते और किचन में इतना काम करती हो. तो यहाँ पर ये जो लेडी है जो राइटर है शी इज एक्सप्रेसिंग हर ओन स्टीरियोटाइप her own old way of thinking that somebody who is 62 years old, somebody who has wrinkles, or somebody who works in kitchen, she cannot read. She's thinking like this. Hmm. Childishly, बचकाने रूप से, I made fun of old lady. मैंने उस बूढ़ी जो हमारी ग्रैंड मदर है उनका मजाक उड़ाया बचकाने रूप से. She is also accepting it here that चाइल्डिशली बचकाने रूप से शी आई मेड फन मजाक उड़ाना मेक फन होता है इसका सेकेंड फॉर्म है यू कैन यूज इट इन योर ओन लैंग्वेज आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट जी शी जस्ट स्माइल्ड लेकिन चूंकि वो बूढ़ी हैं वो बड़ी हैं उन्होंने बस स्माइल किया फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल फिर अब इन्होंने कहा एक अच्छे काम के लिए इफ यू आर डिटर्मिंड अगर तुम दृढ़ निश्चय कर चुकी हो है ना एक पहला सेंटेंस यहाँ पर है फर्स्ट फर्स्ट दूसरा है यहाँ से सो फर्स्ट यहाँ से दूसरा यहाँ से तीन सेंटेंस है इसमें फॉर ए गुड कॉज तीन स्ट्रक्चर्स हैं इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल एक अच्छे काम के लिए अगर आप अच्छे काम के लिए इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड अगर आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तो यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं यही इस पैराग्राफ में बताया गया है इसको हमने अलग अलग करके देख लिया वी सॉ इट बाय डाइसेक्टिंग इट तो ऑब्स्टेकल यानी कठिनाई आई विल वर्क हार्डर मैं काम करूंगी देन एनीबडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार क्योंकि सीखने के लिए कोई समय की सीमा उम्र की सीमा नहीं होती ये मदर बोल रही हैं उनकी ग्रैंड मदर फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन यू कैन ओवरकम एनी स्ट्रगल आई विल वर्क हार्ड मैं काम करूंगी देन एनीबडी बट आई विल डू इट मैं कर लूंगी क्योंकि फॉर का मतलब है बिकॉज देयर इज नो एज बार द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स
अगले दिन के बाद से। ऑनवर्ड्स इज अ गुड वे ऑफ सेइंग अब इसके आगे, फर्दर, द नेक्स्ट डे फर्दर, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, ईच डे आफ्टर नेक्स्ट डे, यू कैन से लाइक दिस। और हर दिन के आगे, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपना ट्यूशन शुरू किया। हवा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, हवा कैसी विद्यार्थी थी, बहुत जबरदस्त विद्यार्थी थी, तीव्र विद्यार्थी थी, कुशाग्र विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, है ना। अब यहाँ चूंकि ये लेसन बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, तो इसमें अमाउंट ऑफ होमवर्क की बात की गई है। जितना अमाउंट ऑफ होमवर्क, जितना ज़्यादा होमवर्क उन्होंने किया, शी डिड जो किया, वॉज अमेजिंग, बहुत मतलब मज़ेदार था, आश्चर्यजनक था कि इतना होमवर्क वो करती थी, मीन्स बहुत वर्क करती थी। शी वुड रीड, वो पढ़ेंगी, रिपीट दोहराएंगी, लिखेंगी और जोर जोर से पढ़ेंगी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी अकेली शिक्षक थी। एंड फिर ये एडिशन का आ गया यहाँ पे, एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। देर आर टू sentences in this, you can see this is the first sentence and this is the second sentence. You have to extract the meaning of first sentence, that is I was her only teacher, मैं उनकी से एकमात्र शिक्षक थी, और इसको दूसरे सेंटेंस की मीनिंग से जोड़ देना है, और वो ये है कि शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो मेरी पहली विद्यार्थी थी। ठीक है, तो इस तरह से बात बन जाती है। लिटिल डिड आई नो, ये एक फ्रेज है, कहने का एक तरीका है। लिटिल डिड आई नो, little did I know that I will fly, little did I know that I will reach to class 10th or 9th, little did I know that I am a human। ठीक है, like this, little did I know how, little did I know then that one day, कि एक दिन I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। ये कह रही हैं कि मुझे उस समय नहीं पता था कि एक दिन आई वुड बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बन जाऊंगी इन कंप्यूटर साइंस, और कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। इन्होंने बाद में कंप्यूटर साइंस किया, एंड शी बिकम अ टीचर। ओके, दशहरा फेस्टिवल, बी केयरफुल ऑफ द मीनिंग। पहले इसमें एक एच भी आता था, अभी नहीं आ रहा है। दशहरा, दशहरा फेस्टिवल, क्योंकि ये दशहरा है, दशहरा नहीं है। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, वैसे ही जैसे आता है वैसा आया, केम मतलब त्योहार आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। अब इन्होंने क्या किया कि जो काशी यात्रा जो करमवीरा में सीरीज में निकल रहा था, करमवीरा में, उसको वो अब पूरा हो चुका था और एक नॉवेल के रूप में आ चुका था, तो इसको उन्होंने खरीद लिया। बाय दैट टाइम इट हैज बीन पब्लिश। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया। टू द पूजा पैलेस, कहाँ बुलाया, जहाँ पर पूजा हो रही थी। एंड और जो एडिशन है, एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, मेड मी बिठाया, बिठाया, मेड मी सिट डाउन, मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, एक स्टूल पर बिठाया। शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। एक मिनट,